Hi guys, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most expected question from awards and honors for MH B.Ed CET 2025 examination. So this is the part 7 of the series. So furthermore parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like and share these videos among those who are preparing for this examination, so that they also get benefit from this video. So let's get started. Before that, here is some important information regarding self-study program. So if you want to join us for self-study program, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes, live classes के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. Else you want to visit our website, I will give you the tour guide of the website where you can see each and everything about the B.Ed examination. So let's go to the website. So you have to go to the manovaredu.com. Here you can see the B.Ed entrance examination. Click on that and you will see the B.Ed CET examination. Live classes, you can go to the live classes. Here you can see the live class crash course S2C batch. So it is available on the website. You can opt for self-study program is also available for 2026-2025. Sectional course, you can opt for any section. Mock test also available for the B.Ed. Each and every section जो है आपको full length mock test मिल जाएगा, topic wise mock test मिल जाएगा. Each and everything is available on the portal, so you can opt for any of these. So let's start the session. So the first question is, which is the literary award? So इसमें से literary award कौन सा है? That is award belongs to the literature. Which award belongs to the literature? That is Dronacharya Award, R.D. Birla Award, Jawaharlal Nehru Award, Gyanpith Award. And the correct answer is Gyanpith Award. So general literary awards are not specific to any particular genre of writing. They include the Man Booker Prize, the Pulitzer Prize, the National Book Award. तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है important award है in the field of literature. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू विच फील्ड? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस कैटेगरी में जो है आपको ये अवार्ड दिया जाता है? सो दैट इज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, म्यूजिक. एंड द करेक्ट आंसर इज स्पोर्ट्स. सो द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट कोचिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो जो भी कोच होते हैं उनको अपने आउटस्टैंडिंग करियर के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड? भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट अवार्ड इन केस ऑफ सिविलियन ऑफ रिपब्लिक इंडिया. सो ये अवार्ड जो है वो कब इंस्टीट्यूट हुआ था, कब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1954, 1952, 1956, 1945. एंड द करेक्ट आंसर इज 1954. So Bharat Ratna, the highest civilian award of the country, was instituted in the year 1954. So this is the highest civilian award of India. Next question is, who was the first recipient of Padma Vibhushan? This is the second highest civilian award after the Bharat Ratna, and Padma award is given in the three categories, that is Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. So the first recipient of Padma Vibhushan, who was the first person to receive this award? Nandlal Bose, Satyendra Nath Bose, Dr. Birbhan Bhatia, Jawaharlal Nehru. And the correct answer is Satyendra Nath Bose. The first recipient of the award were Satyendra Nath Bose जो है वो पहले पर्सन थे जिनको ये पद्म विभूषण दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मा श्री अवार्ड? तो पहला पद्म श्री किसको मिला है आपको? जैसे अभी पद्मा भूषण हमने देखा, तो पहली लेडी एक्ट्रेस यानी वीमेन एक्ट्रेस जो है वो किनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया? सबसे पहले स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला. एंड द करेक्ट आंसर इज नरगिस दत्त. सो नरगिस दत्त रिसीविंग पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट राष्ट्रपति भवन in New Delhi in 1958. She was the first lady actress to receive the Padma Shri and she was the mother of Sanjay Dutt. Next question is, who was the first Indian to receive a Nobel Prize? तो सबसे पहले इंडियन कौन थे जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है? नोबेल प्राइज जो है डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है, और इस सबसे पहले इंडियन जो है वो किनको ये अवार्ड दिया गया था? मदर टेरेसा, हरगोविंद टैगोर, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर. एंड द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. सो रविंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to receive a Nobel Prize for his book Gitanjali, so that he is given the Nobel Prize in the field of literature, that is in 1913 में जो है इनको ये पहला नोबेल प्राइज इंडिया को, मतलब इंडिया के पर्सन को मिला था जिनको जो कि लिटरेचर के फील्ड में था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज और इज द फर्स्ट लेडी रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड?
तो पहली जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये फिल्म कैटेगरी का बहुत हाईएस्ट अवार्ड है, और ये पहली लेडी जो है वो किसने रिसीव किया ये अवार्ड? देविका रानी, उमा देवी, नरगिस दत्त, सुलोचना, एंड द करेक्ट आंसर इज देविका रानी. सो देविका रानी चौधरी was an early Indian movie star, have won the first दादा साहेब फाल्के अवार्ड in 1969, और इट वॉज इंस्टीट्यूटेड 1969 में ही इंस्टीट्यूट हुआ था, और देविका रानी चौधरी को जो है ये पहली बार अवार्ड दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, दिस अवार्ड इज ऑन द नेम ऑफ द फिलीपींस प्रेसिडेंट, और ये जो है मैग्सेसे अवार्ड इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल ऑफ एशिया, एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड वाज इंदिरा गांधी, किरण बेदी, टी.एन. शेषन, विनोबा भावे, and the correct answer is Vinoba Bhave. So Vinoba Bhave was the first Indian to receive the Magsaysay Award in 1958, and he was the person. Vinoba Bhave कौन थे? He followed the ideology of Gandhi ji, and he started the Bhudan movement, that is the आपको लैंड ग्रांट मूवमेंट जो है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से इन्होंने स्टार्ट किया था. विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ही वाज द फर्स्ट सत्याग्रही in 1940. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड वाज, तो पहले फॉरेनर कौन थे जिनको भारत रत्न बताया हमने कि दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, और ये पहले फॉरेनर को जो है किसको दिया गया था? दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान. सो दो यूजुअली कन्फर्ड ऑन इंडियन सिटीजन, द भारत रत्न हैज बीन अवार्डेड टू वन नेचुरलाइज्ड सिटीजन मदर टेरेसा इन 1980, इनको मिला था. ये आपको इंडिया बॉर्न नहीं थी, बाहर से थी. एंड टू नॉन इंडियन, दैट इज पाकिस्तान नेशनल खान अब्दुल गफ्फार का, ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, ही फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर. इन 1987 में इनको दिया गया. और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, ही वाज ऑल्सो नोन एज द गांधी ऑफ द अफ्रीका, सो इनको दिया गया 1990 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साहित्य अकेडमी अवार्ड आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस? तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है ये अवार्ड? 20, 15, 12, 24, एंड द करेक्ट आंसर इज 24. सो साहित्य अकादमी अवार्ड इज अ लिटरेरी ऑनर इन इंडिया विद साहित्य अकादमी. India's National Academy of Letters annually confers on writers of the most outstanding books, और ये जो है 24 मेजर इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज करती है साहित्य अकेडमी, न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश है. और ये आपको 22 जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट इज मेंशन इन शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको. और दो लैंग्वेज और कौन है? तो एक इंग्लिश एंड अदर इज राजस्थानी. इन दोनों को अलग से दिया जाता है, तो टोटल 24 लैंग्वेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हो, तो कौन सा अवार्ड जो है आपको दिया जाता है? पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज अर्जुना अवार्ड. So Arjuna awards are given by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India to recognize outstanding achievements in national sports. और ये जो है आपको जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स के में कोचेस को दिया जाता है, उसी तरह से अर्जुना अवार्ड जो है प्लेयर्स को दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द बुकर प्राइज? तो बुकर प्राइज जीतने वाले इंडियन ओरिजिन के सबसे पहले पर्सन कौन थे? अरुंधति रॉय, वी.एस. नायपॉल, सलमान रश्दी, झंपा लहरी, and the correct answer is V.S. Naipaul was the first person of Indian origin to win the Man Booker Prize, and while Arundhati Roy was the first Indian to win the Man Booker Prize, तो पहले पर्सन जो थे इंडियन ओरिजिन के वो नाइपॉल थे, और अरुंधति रॉय जो है मैन बुकर प्राइज जीतने वाली फर्स्ट इंडियन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पोस्थमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो सबसे पहली बार जो है डेथ के बाद जो है किनको भारत रत्न दिया गया है? तो दैट इज लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, बी.आर. अम्बेडकर, एम.जी. रामचंद्रन, and the correct answer is Lal Bahadur Shastri. So Lal Bahadur Shastri was the first person to have received the Bharat Ratna posthumously in 1966. He was the second Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru. He became the Prime Minister, और 1966 में ही इनको ये अवार्ड भी दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर सी.वी. रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन. तो सी.वी. रमन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, और किस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है? क्रायोजेनिक्स, रेडियो एक्टिविटी, लाइट स्कैटरिंग, सोनोमीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज लाइट स्कैटरिंग.
So C.V. Raman was an Indian physicist who groundbreaking work in the field of light scattering earned him the 1930 Nobel Prize for Physics. और ये रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम रमन इफेक्ट। और इसीलिए जो है इसी दिन इन्होंने डिस्कवर किया था, दैट इज ऑन 28 ऑफ फरवरी, और इसलिए इस दिन को नेशनल साइंस डे के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड का अवार्ड है ये? सिंगिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, बॉक्सिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज म्यूजिक। सो द ग्रैमी अवार्ड इज एन accolade by the National Academy of Recording Arts and Science of the United States to recognize outstanding achievement in the music industry। और ये जो है ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हर साल होता है, 1959 से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल पीस प्राइज? तो सबसे पहले अमेरिकन कौन थे जिनको नोबेल का पीस प्राइज जो है वो दिया गया था? थियोडर रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश सीनियर, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज थियोडर रूजवेल्ट, who served as the 26th president of the United States of America from 1901 to 1909, was the first American to win a Nobel Prize in any category। तो किसी भी कैटेगरी, पीस को ले लो या कोई भी कैटेगरी ले लो, पहले अमेरिकन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था, थियोडोर रूजवेल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स अवार्ड? तो मिस यूनिवर्स का अवार्ड सबसे पहले किस इंडियन जो है वो किसने जीता था? लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, रीता फाड़िया, सुष्मिता सेन, and the correct answer is Sushmita Sen। So 1994 Sushmita Sen won the Miss Universe title after winning the Miss Crown and become the first Indian woman ever to win the Miss Universe crown। आपको रीता फाड़िया, she was the first Indian woman to win the world Miss World का टाइटल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलित्जर प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन? तो पुलित्जर प्राइज जो है आपको जर्नलिज्म वगैरह की फील्ड में ये प्राइज दिया जाता है, और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1928, 1918, 22, 1917, and the correct answer is 1917। So the Pulitzer Prize is a US award for achievement in newspaper and online journalism, literature and musical composition, and it was established in 1917। उसमें कुछ आप अच्छा अचीवमेंट करते हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian won a Nobel Peace Prize in 2014? So 2014 में जो है किस इंडियन को पीस प्राइज दिया गया था? रामकृष्ण, वेंकट रमन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, and the correct answer is कैलाश सत्यार्थी। So the 2014 Nobel Peace Prize was shared between Kailash Satyarthi of India and Malala Yousafzai of Pakistan, and they were awarded for their struggle against the suppression of children and young people for the right of the children to education। ये एजुकेशन के लिए लड़ रही थी मलाला यूसुफजई, तालिबान ने गोली मार दिया था। और ये जो थे कैलाश सत्यार्थी, ही रन्स अ कैंपेन दैट इज बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनका कैंपेन का नाम था, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ज्ञानपीठ अवार्ड हमने देखा था, इट इज द लिटरेरी अवार्ड, और ये जो है सबसे पहले किसने इसको किनको ये अवार्ड दिया गया था? सो थकाजी शिवशंकर पिल्लई, जी शंकर कुरूप, के बी पुटप्पा, वसुदेवन नायर, and the correct answer is G. Shankar Kurup was the first winner of the Gyanpith Award, India's highest literary award। He won the prize in 1965 for his collection of poems in Malayalam, Odda Khujal, The Bamboo Flute 1950। ये जो पोएम आया था उसकी वजह से इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहली बार किसको दिया गया? नाउ द नेम हैज बीन चेंज्ड, और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, दैट इज कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड का नाम अब कर दिया गया है। पहले जो अमाउंट था इसमें दिया जाता 7.5 लाख रुपीज, नाउ द अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.5 टू 25 लाख रुपीज। सो लिम्बाराम, लिएंडर पेस, कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, and the correct answer is Vishwanath Anand। The first person of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award was Vishwanath Anand, the renowned Indian chess grandmaster, and he was also the first grandmaster of India। इनकी बुक है माइंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत रत्न इज डिजाइन लाइक द लीफ ऑफ? भारत रत्न का जो है फोटो और वो आपको लीफ की तरह होगा, और वो किस लीफ की तरह जो है डिजाइन किया गया है? कोकोनट ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री, संदलवुड ट्री, एंड द करेक्ट आंसर इज people tree। So the actual award is designed in the shape of people leaf and carries with the words Bharat Ratna inscribed in Devanagari script,
रिवर साइड ऑफ द मेडल कैरीज द स्टेट एम्बलम एंड मोटो। स्टेट एम्बलम हमारा क्या है, दैट इज सारनाथ लायन पिलर ऑफ अशोका जो है हमारा स्टेट एम्बलम है, और उसका मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रुथ एलोन ट्राइम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग्स द फॉलोइंग वन द नोबेल प्राइज एट लीस्ट ट्वाइस। तो इनमें से 2 बार जो है नोबेल प्राइज किनको दिया गया है, किसने जीता है, ऑक्टाविया पेज, मैडम क्यूरी, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज चौपक। एंड द करेक्ट आंसर इज मैडम क्यूरी। So Madam Curie shared her 1903 Nobel Prize in Physics with her husband Pierre Curie and with physicist Henry Becquerel. And she was the sole winner of 1911 Nobel Prize in Chemistry. तो फिजिक्स का मिला था 1903 में, और केमिस्ट्री का जो है 1911 में। नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एकेडमी अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज, एकेडमी अवार्ड को और भी किस नाम से जाना जाता है, पाम देओर, बाफ्टा अवार्ड, मैथ्यूज अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्कर अवार्ड। So the Academy Award is also known as the Oscar Award, which is presented for various categories in the film industry. It was first given in 1929 और ये लॉस एंजलिस में जो है आपको देखने को मिलेगा Academy Award. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शास्त्र रामानुजन प्राइज इज रिलेटेड टू। तो ये जो शास्त्र रामानुजन प्राइज है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, साइंटिस्ट, यंग मैथमेटिशियन, पोएट, यंग फिजिशियन। एंड द करेक्ट आंसर इज यंग मैथमेटिशियन। सो शास्त्र रामानुजन प्राइज फाउंडेड बाय शानमुगा आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, शास्त्र यूनिवर्सिटी इन कुंभकोणम, इंडिया। श्रीनिवास रामानुजन टाउन था ये। जो रामानुजन थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है। एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू एवरी ईयर टू ए यंग मैथमेटिशियन। कोई भी यंग मैथमेटिशियन जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवार्डेड ईच ईयर। तो टोटल कितने नोबेल प्राइज जो है अवार्ड किया जाता है हर साल, 4, 7, 5, 6 and the correct answer is 6. So the Nobel prizes are given every year for outstanding contribution in 6 fields of chemistry, economics, literature, peace, physics और physiology और medicine, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। पहले जो स्टार्टिंग में था वो 5 अवार्ड था, इकोनॉमिक्स का फील्ड नहीं था। बाद में 1967 में जो है इकोनॉमिक्स को ऐड कर लिया गया और 1969 में जो है पहली बार इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉरियस अवार्ड इज एसोसिएटेड टू द फील्ड ऑफ। लॉरियस अवार्ड जो है ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है। सो लॉरियस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज स्पोर्ट्स। सो द लॉरियस अवार्ड और एनुअल अवार्ड गिवन टू दोज स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर। दीज अवार्ड्स वेर एस्टैब्लिश्ड इन 1999 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फाउंडिंग बाय पैट्रॉन डेमर एंड रिचमोंड जो है इन लोगों ने मिलकर इस अवार्ड का फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कन्फर्ड द कालिदास सम्मान। सो कालिदास सम्मान इज गिवन बाय व्हिच स्टेट। कालिदास वाज अ ग्रेट स्कॉलर, आपको कह सकते हो फिलोसफर थे, और ये जो है आपको उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। सो कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्डेड प्रेजेंटली एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द कालिदास, रिनोड क्लासिकल संस्कृत राइटर थे जिनके नाम पर यह अवार्ड आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाम द ओर प्राइज इज गिवन बाय। तो ये जो है पाम द ओर जो है ये कौन सी कंट्री जो है वो देती है, इंडोनेशिया, यूएस, यूके, फ्रांस। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। सो पाम द ओर इज द हाईएस्ट प्राइज अवार्डेड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, इज प्रेजेंटेड टू द डायरेक्टर ऑफ द बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ द ऑफिशियल कंपटीशन। और ये जो है फ्रांस जो है ये देता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द साइंटिस्ट हु वाज एसोसिएटेड विद फूड ग्रेन रिवॉल्यूशन एंड वाज आल्सो वन द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रोपाउंड किया था और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एन नॉर्मन बोरलो, एम.एस. स्वामीनाथन, विली ब्रांट। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्मन बोरलो. So the man who saved 1 billion lives was an American agronomist, humanitarian and Nobel laureate who has been called the father of the Green Revolution. And for his contribution to the world food supply, Nobel Peace Prize 1970 ये जो है इनका जो प्रोडक्शन था ग्रीन रेवोल्यूशन में, खास करके वीट में बहुत ज़बरदस्त काम किया था इन्होंने। इंडिया में किनको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द father of the green revolution. So these are the 30 most important questions which we have discussed. Guys, hope you guys have understood the session well.
If you have any queries, any doubt, you can write in the comment section. With that, we will conclude this session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.